Rahim, in the name of Allah, the most gracious, Bismillah Rahim, in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to all of you here in this class of English, grammar, comprehension, and essay writing. So here we'll try to learn the things that are basically related with your exams preparation, right? Like we have to learn essay writing, comprehension, then how to write Prezi, what is Prezi writing. And after this, we'll inshallah start grammar and vocabulary. In grammar, we have to focus on the areas of parts of speech, tenses, and sequence of tenses. Then we'll discuss active and passive voices, direct and indirect speech, subject, verb, agreement, punctuation and capitalization, prepositions, common confused words, like a pair of words, okay, words that have same pronunciation, same spellings but different in meanings as per the requirement of the context. And we'll definitely discuss the legal vocabulary, that is some important legal terms, right? And in Prezi writing, we'll try to understand what is Prezi, right? Steps for writing a good Prezi, read how to read and how to comprehend a passage, how to omit unnecessary details and examples and repetitions if we have there, and how to use your own words using concise and formal language, and how to maintain coherence and logical flow in your writing, and how to give a short and suitable title for that writing. Okay, ji. So in reading comprehension, read how to improve your reading skills, कि हमने अपनी रीडिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है, राइट? रीडिंग ट्वाइस और थ्राइस, क्योंकि हमने वी हैव टू अंडरस्टैंड द गिस्ट ऑफ अ पैसेज ऑफ अ टेक्स्ट, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको भी डिस्कस करना है, राइट? फिर उसके बाद essay writing भी हम डिस्कस करेंगे. we'll discuss the essay writing as well, like how to make the structure of an essay, what are the things that we must know before writing an essay, what is introduction, what is body and what is conclusion, right? And इसके बाद फिर जो है हमने देखना है कि like suggested topics अगर suppose that आ जाते हैं, तो the role of judiciary in strengthening democracy, justice delayed is justice denied, empowerment in Pakistan, corruption, right? So these are some of the topics that we'll discuss. फिर उसके बाद again legal English practice, that are the common legal terms from different Greek and Latin languages, and that are universal, like plaintiff क्या होता है, defendant क्या होता है, jurisdiction का क्या मतलब है, affidavit किसको कहते हैं, ठीक है? तो इसके बाद फिर हम कोशिश करेंगे कि हम जो है वो ट्रांसलेशन भी सीखें, कि हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू और इंग्लिश टू उर्दू और उर्दू टू इंग्लिश. So these are the things that we will discuss here. So we'll try to learn here, inshallah. So I would like to know about you people. What do you actually want to learn, and which area you think is the most important that we should have practice here in these sessions? Yes, please. Over to you. Ma'am Komal is here. Fatma Vakas is here. Yes, Fatima. Yes, please. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? यस सर, आ रही है. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. हुस्ना मुबशर. जी हुस्ना. देखिए, जो इंटरेक्टिव क्लासरूम होता है ना, चाहे वो फेस टू फेस हो या
हमारा ऑनलाइन हो, दैट मस्ट बी स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी यू हैव टू रिस्पॉन्ड। आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर एक जो है स्पीकर वो बोलता रहेगा और दूसरे सुनते रहेंगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल सेशन। ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पार्टिसिपेट करें। आप बताएं क्या पढ़ना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर जी प्रेसी प्लीज। राइटिंग। प्रेसी राइटिंग, ओके। अदर देन दैट? कॉम्प्रिहेंशन। जी जी बोलें। बेसिक्स होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता होना चाहिए, टेंसेस। जी। सो बेसिक जो दैट मतलब टू बी वेरी फ्रैंक कि जो वेन एवर वी टॉक अबाउट लर्निंग अ लैंग्वेज, यानी एक जनरल वे में बात करते हैं, राइट? तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप लोग रिस्पॉन्ड करें, आप डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करें, ताकि पता चले कि यार एक कोई चीज़ जो है ना हमारी ठीक वे में जा रही है और इसका कोई रिजल्ट आ रहा है, राइट? तो अब ये है कि द सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश इज बेसिकली व्हाट इज इंग्लिश इज लैंग्वेज, राइट? तो अब कोई भी जुबान जब सीखी जाती है, व्हेन एवर वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज वी हैव टू लर्न द grammar of that particular language as well, right? So my question is this: कि why we have to understand the grammar, we have to learn the grammar? So that we write in that language very well our Hmm. concepts. Or if I ask you again, if I ask you what is grammar, so how will you define that? कि ग्रामर है क्या बेसिकली? बेसिक्स ग्रामर में आ जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, कौन सा वर्ड किस कैटेगरी से जो है वो रिलेट करता है, आपका जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। Hmm. Well, these are the components, right? These are the parts of grammar. But the question is कि असल में ग्रामर क्या है? लाइक एवरी लैंग्वेज, शायद चाइनीज या एक दो लैंग्वेजेस और हैं, आई थिंक, मुझे ये चेक करना पड़ेगा, कि जिनकी ग्रामर नहीं होती। अदर देन दोज टू और थ्री लैंग्वेजेस, जितनी भी जुबानें बोली जाती हैं सबकी ग्रामर होती है। लाइक अरेबिक ग्रामर है, उर्दू ग्रामर है, जो हम स्कूल कॉलेजेस स्कूल में स्पेशली पढ़ते आए हैं, राइट? तो व्हाट इज ग्रामर, द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है। कोई भी एग्जाम है, मतलब फॉर्मल एजुकेशन हमारी स्टार्ट हुई, वी स्टार्टेड लर्निंग राइट इन द स्कूल, कॉलेज, फिर सो ऑन। इवन अब तक जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, कुछ भी होता है, मैं गेट का टेस्ट देने गया तो उसमें भी ग्रामर का एक पोर्शन था, राइट? एमएस का जो टेस्ट होता है उसमें ग्रामर का एक अच्छा, फिर लैट जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें भी 25% 20 पर जो है वो मार्क्स ग्रामर के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के। फिर उर्दू ग्रामर भी उसमें इंक्लूडेड होती है। सो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रामर। मैं सिर्फ आपका ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि ग्रामर क्या चीज़ होती है। ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली इंग्लिश, बस सवाल है सीधा कि ग्रामर किस चीज़ को कहते हैं। नॉट द कंपोनेंट्स, लाइक जैसे उसने आपने बताया कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उसमें स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, ये नहीं, उसमें तो होता है लेकिन वो है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। सर बेसिक रूल्स फॉर यस। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। यस। अब देखें, वेरी गुड, टू द पॉइंट। आंसर क्या है कि व्हाट इज ग्रामर, व्हाट आर यू लर्निंग? आई एम लर्निंग ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, सपोज दैट, और आई स्टार्टेड ग्रामर। अब ग्रामर क्या है? डेफिनेट सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज है तो इंग्लिश लैंग्वेज की ही ग्रामर पढ़ रहे हैं हम। तो व्हाट इज ग्रामर? बेसिकली ग्रामर इज द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है। ग्रामर को अगर आपसे कोई भी पूछता है कि व्हाट इज ग्रामर, डिफाइन दिस, सो योर आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, शॉर्ट। ठीक है, क्या है जी ग्रामर? क्या है? ग्रामर है रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, राइट? व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग अ लैंग्वेज वी हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है। जब हम उसके रूल्स को सीखते हैं देन वी नो हाउ टू स्पीक इन द राइट वे, हाउ टू यूज दोज रूल्स इन आर राइटिंग एंड इन आर स्पीकिंग। ठीक है ना? समझ आ रही है मेरी बात? कि जी जब सर। हम उन रूल्स को समझ जाते हैं कि ये रूल है, इस रूल को कहाँ पे अप्लाई करना है, राइट? इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होनी है, राइट?
फॉर एग्जाम्पल ये बात कर लेते हैं हम कि यार पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड श्योर सी बात है कि इस लेवल पे तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट टेंस में हमेशा व्हेन एवर वी टॉक अबाउट द पास्ट इवेंट और समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, पास्ट में जो चीज हुई उसके लिए हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब क्या है? वर्ब एक्शन है। मैं मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये रूल है एक, कि वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पास्ट व्हेन एवर वी विल टॉक अबाउट पास्ट एक्शन, पास्ट एक्टिविटी, तो हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी है वर्ब की, ठीक है। अब ये रूल है। अब ये रूल अप्लाई कहाँ पे होगा? डेफिनेटली जब आप नॉर्मल वे में भी कभी भी आप किसी कोई भी बात करेंगे पास्ट से रिलेटेड, सो यू हैव टू अप्लाई दिस रूल देयर। समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है। मैं मतलब हम फिलहाल वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, ठीक है, कि अंडरस्टैंडिंग द रूल इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अब हमें पता चल गया कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमने वहां पे जो है वो रूल यूज करना है, दैट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मसला ये है कि वी मस्ट नो एंड वी शुड बी एबल टू अप्लाई दैट इन आवर रीडिंग एंड इन आवर राइटिंग एज वेल, ठीक है। अब मैं आई थिंक आई एम सॉरी, पता नहीं मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है या नहीं। माय नेम इज़ शौकत जमान एंड आई बीन टीचिंग इन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 12 years, एंड आई बीन टीचिंग इन रावलपिंडी लॉ कॉलेज, रावलपिंडी कमर्शियल मार्केट। यहाँ पे मेरा इस ये जो है अभी सेशन चल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी माय फोर्थ सेशन विद दिस। तो यही है कि मैं फंक्शनल कोर्सेज, लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें, इवन इन द लास्ट 2 semester, प्रीवियस जो सेमेस्टर गुजरे, आई टॉट ESP। ESP इज दैट इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और वो जो है इंग्लिश फॉर लॉयर्स, उसमें लीगल जो चीज़ें हैं वो भी मुझे मुझे खुद सीखने को मिली, राइट। यानी मैं कोई लॉ का टीचर नहीं हूँ, लेकिन दाएं बाएं असातिज़ा और जो स्टाफ है उनकी मदद से बहुत सारा टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो लॉ से भी रिलेटेड हैं और जनरली जो है ना हमारी लैंग्वेज को भी इम्प्रूव करती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को। आई विल डेफिनेटली शेयर सच फॉर्म ऑफ लिटरेचर विद यू। एक एक आध जो है उसमें पैराबल है, शॉर्ट स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगेन दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद लॉ, लेकिन उससे क्या है, हमारे कंप्रीहेंशन और हमारी जो प्रेसी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होंगी। इसी तरीके से लीगल टर्म्स जो हैं वो भी मैंने पढ़ाई। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, लेकिन वो मैं अपना जो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने से पहले इसको अपने जो सीनियर हमारे लॉयर्स बैठे होते थे उनसे पूछता था कि सर ये बता दें, मैम ये बताएं इसमें क्या है। अगेन वो फिर मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, वो चीज़ें पढ़ाई, फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो पढ़ा के, समझ आई चीज़ें। फिर उसके बाद poems थी, लाइक पोइट्री, दैट इज अगेन एसोसिएटेड विद लॉ, ठीक है। टू अ यंग जज ऑन टेकिंग ओथ, बड़ी इंटरेस्टिंग 2-4 पोएम्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो वो भी आप देखेंगे कि उससे भी आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कंप्रीहेंशन स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी। तो इस तरीके से मेरी एसोसिएशन है एजुकेशन के साथ, कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी में शरिया लॉ में भी काफ़ी टाइम हो गया है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से तो शुरू से ही एसोसिएटेड हूँ, और उसके बाद जो है रावलपिंडी लॉ कॉलेज में चौथा मेरा सेशन है। सो दिस इज़ अबाउट मी। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने बारे में बताएं, फिर उसके बाद हम जो है ना उसी बात को कंटिन्यू करेंगे कि रूल्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं टू लर्न, टू अंडरस्टैंड। सर हुस्ना मुबशिर हेयर फ्रॉम लाहौर, और जी, मैं जो है वो जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ सिंस ठीक है। प्रीवियस ईयर। हम्म। तो और अभी आपकी, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं तो उसके लिए भी मैं तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। और आपका LLB कब किया आपने उसना? सर मेरा सेशन 2019 से 21 का था। 21 का? अच्छा, उस वक्त 3 सालों का होता था, राइट। जी जी, वो लास्ट ईयर था जब मैंने सेशन लिया था 3 इयर्स का। अच्छा, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही उसना? जी सर। उसके बाद फिर LLM वगैरह नहीं किया आपने?
नहीं, उसके बाद प्रैक्टिस की है और अभी प्रैक्टिस फिलहाल स्किप की हुई है फॉर रिगार्डिंग स्टडीज। सो ओके जी, वेरी गुड। इंशाल्लाह, आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो बहुत अच्छा होगा आपका, नहीं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद है जनाब फातिमा वकास। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं जो है ना कुरतुल फातिमा नाम है मेरा, डिस्ट्रिक्ट जी जी। मुजफ्फरनगर से हूँ अच्छा, और डीटीपीपी की तैयारी कर रही हूँ। किसकी कर रही हैं? डीटीपीपी। अच्छा, सही सही। तो आपने क्या किया हुआ है फातिमा? सर मैंने लॉ किया है, 2014 का मेरा लॉ है। उसके बाद मैंने एलएलएम किया है। और माशाल्लाह, कहाँ से की? सर एलएलएम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। अच्छा, यूनिवर्सिटी। अच्छा, मेजोरिटी जो है ना, इवन मेरे साथ जो कोलीग्स हैं बहुत सारे, उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से किया हुआ है जी। LLM सर लाहौर वो वाले कैंपस से। सर एक्चुअली प्राइवेट है तो इस वजह से, क्योंकि वो मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का तो ये होता है ना कि पहले एग्जाम वगैरह दो, क्लियर हो तो फिर आपका मेरिट में नाम शाम आए। तो सर इस हम्म। वजह से शायद, मे बी। ठीक 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 ठीक। तो प्रैक्टिस कर रही हैं फातिमा आप? सर प्रैक्टिस नहीं करती। नहीं करती? सही नहीं सर। सही। चलें चलें जी, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे हाँ, और आपको बहुत अच्छे से समझ आए इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह सर। तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग। तो मैं क्या बात कर रहा था उसना? सर हम रूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि रूल्स का हाँ जानना जरूरी है इंग्लिश राइटिंग के लिए। हाँ जी, वो मैं कह रहा था कि पास्ट में है तो वी आर वी इफ वी टॉक अबाउट पास्ट, सो डेफिनेटली वी मस्ट नो कि पास्ट जो है वो उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, अब ये रूल हमें पता चल गया। अब इस रूल को, डेफिनेट सी बात है, हम लिखने में भी अप्लाई करेंगे और इसको हम जो है वो बोलने में भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रामर होती है, ग्रामर में हमें रूल्स का पता चलता है कि कहाँ पे किस रूल को हमने किस सिचुएशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ये होती है ग्रामर। बाय द वे, उसने आपका बहुत अच्छा आंसर था उसका, टू द पॉइंट, कि अब आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यार, जब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ग्रामर, सो यू कैन से दैट के रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, ऑफ अ लैंग्वेज। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। ये जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। आई विल ट्राई टू मेक सम स्लाइड्स, PPTs, एंड आई विल ट्राई टू शेयर देम विद यू। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, एक तो ग्रामर का हमें पता चल गया उसना फातिमा, राइट। हमें ये समझ आ गई कि रूल्स जो होते हैं लैंग्वेज के, उसको ग्रामर कहते हैं। यस सर। अब हम बात अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, पर्टिकुलरली अबाउट इंग्लिश ग्रामर, राइट। देखें, अब रूल्स तो हो गए। कौन से रूल्स? रूल्स दैट शो हाउ द वर्ड्स आर कंबाइंड, के वर्ड्स को किस तरीके से हमने कंबाइन करना है। हाउ द वर्ड्स आर अरेंज्ड, ठीक है, उनको किस तरीके से अरेंज करना है। एंड हाउ द वर्ड्स आर चेंज्ड टू शो डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, कौन सी ग्रामर है की डेफिनेशन है इंग्लिश ग्रामर की, कि वो रूल्स जो हमें बताते हैं कि हमने वर्ड्स को किस तरीके से कंबाइन करना है, किस तरीके से अरेंज करना है और किस तरीके से चेंज करना है डिफरेंट सिचुएशंस के लिए, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट मीनिंग्स के लिए। बिकॉज कि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब कुछ और, एक टाइम में 2 से 3 मीनिंग्स होते हैं उसके, राइट। यहाँ पे जैसे कॉमन कंफ्यूज वर्ड्स में मैंने लिखा है अफेक्ट और इफेक्ट। अब अफेक्ट और इफेक्ट, एडवाइस और एडवाइस, थोड़ा सा स्पेलिंग का फर्क है। या मिसाल देता हूँ, कि अभी एक और मिसाल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि हाउ टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ मीनिंग। ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है, तो फिर हमें मीनिंग की समझ आती है। मिसाल के तौर पर, वी स्टार्टेड द क्लास। ठीक है, हमने क्लास स्टार्ट की। आप में आप हैं, कोमल हैं, मैं हूं, दूसरा है, तीसरा, 3 4 5 6 बंदे हैं, राइट।
अब मैं कैमरा भी ऑन करता हूँ, या फिजिकल हमारी क्लास होती है, ठीक है, ऑन कैंपस क्लास होती है, तो उसमें क्या होता है कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपने ये अंदाज़ा लगाया है कि यार ये जो है ना, आपने अंदाज़ा लगाया, यू गेस्ट के ये सर जो है ना आज ठीक नहीं है, ये बंदा ठीक नहीं है, बीमार है, या इसको कोई परेशानी है या कोई टेंशन है किसी परेशानी में, ठीक है। तो हुसना ने या फातिमा ने पूछा, ओके सर व्हाट आर वी गोइंग टू, नो, किसी आप दोनों में से किसी एक ने पूछा कि सर आर यू ओके। अब मैंने तो नहीं अब बताया आपको कि मैं परेशान हूँ या मुझे कोई खुदा न खास्ता टेंशन है या कुछ है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन से आपने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया कि इस बंदे को कोई मसला है, जो फेस रीडिंग होती है, राइट, ये नेचुरल है। ये भी इंशाल्लाह जब हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे ना, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है। वैसे आपको पता ही है माशाल्लाह इतनी अच्छी आपकी डिग्रीज हैं। अच्छा, तो आपने पूछा कि क्या है जी, आपको सर आर यू ओके, एंड आई सेड कि नो हुस्ना मुबशिर, आई एम नॉट ओके, आई एम टेंस टुडे, राइट। क्या मैंने कहा हुस्ना? कि मैं आज परेशान हूँ। जी, मैंने कहा आई एम टेंस टुडे, ठीक है। यानी आप वर्ड, मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, टी, TENSE, टेंस टुडे, राइट। जी। ओके जी। तो फिर फिर आपने कहा ओके सर, अगर आप टेंस हैं, इफ यू आर टेंस देन नो वरीज, विल नॉट टेक द क्लास। तो लेकिन फिर मैंने कहा नहीं नहीं, क्लास लेनी है। एंड देन फातिमा आस्क्ड, ठीक है, फातिमा ने पूछा कि ओके सर, टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है। पहले उसने ने पूछा कि सर आपको क्या हुआ है, और मैंने कहा कि मैं टेंस हूँ, आई एम टेंस टुडे, राइट। फिर उसके बाद फातिमा ने पूछा कि सर अच्छा मुझे हमें बताएं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो फिर मैंने फातिमा को ये कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टुडे। क्या कहा मैंने सेकेंड सेंटेंस में, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, प्रेजेंट टेंस टुडे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस टुडे। अब देखिए आप दोनों जुमलों को, इन फर्स्ट वन आई सेड कि आई एम टेंस टुडे, राइट, और दूसरे में मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंस टुडे। इन दीज sentences, both sentences, I used a word tense and again tense, but in the first one the tense is totally different from the tense that is used in the second sentence. समझ आ रही है बात? यस सर, कॉन्टेक्स्ट चेंज है। Context change है, right? Even the word is same, tense, 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 and the context is telling you that I am talking about tension. मैं टेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रामर वाले टेंस की बात नहीं कर रहा जब मैंने कहा कि आई एम टेंस टुडे, राइट। अब ये किस तरीके से आपको पता चला? थ्रू द ग्रामर, बिकॉज इन इंग्लिश ग्रामर देर आर मैनी वर्ड्स दैट हैव द सेम spelling, same pronunciation, but different meanings at different places, ठीक है। सो कंटेक्स्ट जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। और दूसरे में जब मैंने कहा कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रेजेंट टेंस टुडे, तो अब इसको, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके स्ट्रक्चर ने आपको बताया कि इस ये वाला जो जुमला है, ये वाली जो बात है, इसमें क्या बात हो रही है, ग्रामर के टेंस की, ना कि टेंशन वाले टेंस की। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको बात? जी सर। गुड। तो ये है जी जनाब, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। तो अब ADPP का जो है सिलेबस, वो आप देख सकते हैं, उसमें क्या है जनाब, पेपर 5 100 मार्क्स का, MCQs इसमें 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। कंपोनेंट इसमें क्या है, थोड़ी देर पहले जब हमने क्लास स्टार्ट की तो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश कंपोजिशन होगी, उसमें ग्रामर और वोकेबलरीज का जो फोकस एरिया होगा दैट वुड बी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ हम डिस्कस करेंगे, ये ग्रामर की बात हो रही है, ठीक है, ग्रामर एंड वोकेबलरी। टेंसेस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, कि टेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका सीक्वेंस क्या होता है, एक्टिव और पैसिव तभी हमें समझ आएंगे जब हमें टेंसेस समझ आएंगे, राइट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच तब हमें समझ आएगी जब हमें टेंसेस समझ आएंगे, राइट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तब समझ आएगा जब हमें टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता चलेगा। और पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग स्किल्स,
ठीक है, ये जो फोकस एरिया है हमारा, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ग्रामर एंड वोकेबलरी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट को वर्ब के साथ किस तरीके से एग्री करना होगा, किस तरीके से एग्री करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज है, पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन क्या होती है, राइट, और कैपिटलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अगेन आपके प्रोफेशन से भी ये रिलेटेड हैं चीज़ें। आपने बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती हैं एज अ लॉयर, एज अ जज, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें टाइप करनी होती है, और ये वो चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना पड़ता है कि पंक्चुएशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वेइंग आर मैसेज, ठीक है। यानी जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं उसके लिए पंक्चुएशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये भी हमारा एग्जाम में राइटिंग क्वेश्चन स्किल्स। भी होता है इसका, जी पंक्चुएशन का जी ना। जी जी। सीजे के एग्जाम में ना इसका क्वेश्चन भी होता है अलग से, 5 मार्क्स का, पंक्चुएशन का। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो सीएसएस का एग्जाम होता है उसमें भी होता है पंक्चुएशन का। एलएलबी का जो होता है हमारा पार्ट 2 का पेपर, उसमें भी पंक्चुएशन का क्वेश्चन होता है। अगेन, अब एग्जामिनर क्या एनालाइज करना चाहता है कि वेदर स्टूडेंट नोज हाउ टू पंक्चुएट। देखें, पंक्चुएशन जो होती है दैट मेक्स आवर राइटिंग मोर क्लियर, ठीक है, मोर अंडरस्टैंडेबल। फिर वही बात कि जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी कि ये क्या होती हैं और किस तरीके से। मैं आपको वर्कशीट्स भी दूंगा, ठीक है, आपके साथ मटेरियल भी शेयर करता रहूंगा, और डेफिनेटली विद कांस्टेंट प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू पंक्चुएट, एंड यू विल बी एबल टू नो वेयर टू यूज कैपिटल लेटर एंड वेयर टू यूज स्मॉल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स इंक्लूडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। अब फिर उसके बाद प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन लैट में भी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन जो अभी कल परसों मैंने गैट दिया उसमें भी प्रेपोजिशन है, जो सीएसएस लेवल का। अब प्रेपोजिशन भी दिस इज इंक्लूडेड इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन सेपरेट जो है ना, हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रेपोजिशन का पोर्शन है, इसका हमारा मेन फोकस उसके ऊपर भी होगा। फिर उसके बाद कॉमन कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं लाइक अफेक्ट, इफेक्ट, ये पेयर ऑफ वर्ड्स, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लीगल, जो पहले मैंने बात बताई आपको, लीगल वोकेबरी वोकेबलरी, जो हमारी लेटन और ग्रीक लैंग्वेज से जो लीगल टर्म्स यूज होती हैं उनको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये बेसिक हमारा जो है ना ग्रामर का पोर्शन है, ठीक है। तो अब ये आपने बताना है, आपने क्योंकि पढ़ना आपने है और मैं आपको साथ लेके चलूंगा। मैं अपनी कोई मर्जी आपके ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा। यू आर द अथॉरिटी, राइट, यू आर द लर्नर्स एंड यू आर सुप्रीम, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि हमने सबसे पहले इस चीज के ऊपर जो है ना फोकस करना चाहिए, इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए, ताकि हम फिर इसी तरह सो ऑन हम अपनी जो राइटिंग है, जो अपनी लर्निंग है, उसको आगे लेके चले, ठीक है। ये ग्रामर का पोर्शन हो गया। उसके अब बताएं हम पहले क्या स्टार्ट करें, ग्रामर स्टार्ट करें, प्रेसिस स्टार्ट करें। अब ग्रामर क्योंकि बेसिक कंपोनेंट है सारी चीज़ों का, सारी चीज़ें जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी राइटिंग जो है वो ग्रामर पे डिपेंड करती है, हमारी रीडिंग जो है वो ग्रामर पे डिपेंड करती है, हमारी स्पीकिंग डेफिनेटली ग्रामर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जी हुस्ना, सर आप कुछ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है जी जी कि जैसे लार्ज प्रोजेक्ट आता है, हमें ऐसे आता है सीजे में या एडीपीपी लेवल में। जी। अभी जो रिसेंट पेपर हुआ है लीगल इंस्पेक्टर का, उसमें एक ऐसे था, जुडिशल रिफॉर्म्स, इफेक्ट्स, हम्म। कॉजेस और वे फॉरवर्ड। जी। बल्कि मैं ये ज़्यादा इससे पहले ये पूछना चाहूँगी कि एक उर्दू में ऐसे था कि सोशल मीडिया रहमत या जहमत, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो रही थी कि अगर हमें ऐसा ऐसे आता है तो हम क्या दोनों पे बात करेंगे या सिर्फ एक इंस्टांस लेंगे और उसी के हक में दलाइल देंगे। लेट्स नहीं। सपोज अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो जी। हमें नुकसानात तो हैं लेकिन उससे ज़्यादा फायदे भी हैं। तो हम पॉजिटिव रह के फायदे का इंस्टांस लें, रहमत का इंस्टांस लें और उसी पे लिखते जाएं, या हमें दोनों पे बात करना होती है। अब देखें, चलें थोड़ी सी ऐसे राइटिंग भी इंट्रोडक्टरी बात करते हैं, वेरी गुड।
देखिए, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपको ये पता ही होगा, ये इंटरमीडिएट लेवल पे है उसना, फातिमा, ये इंटरमीडिएट लेवल पे है कि आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हमें हमारे टीचर ने ये टाइम तो ख़त्म होने वाला है, लेस देन 1 मिनट, ये फिर कॉल ड्रॉप हो जाएगी कोमल, फिर इसको क्या कैसे करेंगे मैम कोमल? आई डोंट नो मच